आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहम्मद निसार, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट ऑफ एंजल्स फर्टिलिटी। मैं मोहम्मद निसार, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। मैं फर्स्ट जनरेशन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। मेरा ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस है एम्ब्रियोलॉजी में। हम अब एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है अब उसके बारे में बताएंगे। एम्ब्रियोलॉजी एक मैरिड कपल 1 साल रहने के बावजूद उनको बच्चे नहीं होते हैं, उसके बाद उनको चाइल्डलेस इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसकी इलाज के लिए जो सेंटर को आते हैं वो इनफर्टिलिटी सेंटर, जो फर्टिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी सब स्पेशलिटी होती है फर्टिलिटी मैनेजमेंट। फिर वो फर्टिलिटी मैनेजमेंट के साथ जो एसोसिएट काम करते हैं बैक टू बैक, वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक किसी भी आईवीएफ सेंटर के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। क्या करता है, हम हस्बैंड को इवेल्युएट करते हैं, उनके सेमेन टेस्ट चेक करते हैं सारी, उनको आईयूआई की जरूरत पड़ती या इंडक्शन की जरूरत पड़ती या खाली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती, क्योंकि आजकल मेल इनफर्टिलिटी इन रैम्पेंट, आई मीन इट इज लाइक अ पेंडेमिक बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट. Wife is working in night shift, husband is working in day shift. Because of this, male infertility is in rampant. I'm coming to the point where my experience, मैं 1995 से मैं इस शोबे से जुड़ा हुआ हूँ एम्ब्रियोलॉजी में। मेरी पहली इंटरनेशनल जॉब थी सऊदी अरब. Then I worked in Riyadh for almost 1.5 to 2 years. Then I came back to Kuwait for American Accredited Hospital, where I enhanced my skills in male infertility. We do evaluate testicular biopsies, TISA, PISA, and those who are not having sperm, we can extract sperm from the testes, and these couples can have still their own biological child. So my experience, I worked with legendary doctors and non-donor work. Most of my experience is non-donor work. Genuinely, we evaluate the patient and we work in that accordingly with the patient condition. So I worked with legendary doctors and my vast experience in Kuwait. 13 years I worked in Kuwait. Then I came 2010. I came to India. I started my job. First job in Kamineni. Then I went to Nilima. The most of my centers I design myself, because my experience and working with the American accredited international hospitals and very famous scientists, that made me to use my experience in our country, with our people. I am sharing a lot of information with our people to educate patient and to educate young embryologists and young doctors. I have my own YouTube channel. Also, you can see lot of I have real time recording of my videos where lot of people are asking. I am trying to guide them to not to exploit from the people who they can take a right direction. So my channel in YouTube, I have videos on IVF, semen analysis, egg collection, ICSI, testicular biopsies and TISAs, and people who are not having sperm, we extract the sperm. The real time recording, that whole in YouTube search engine, you will not find the videos, unedited videos, which I am posting for you people to have a educated for educating you people. And before you go to any, I advise couples who are
looking for children's, I want them to have a homework before going to any center. To check the center, they have to check all the infrastructure, their doctor, their embryologist. You have to check all this. किसी भी infertility को define करने के लिए बेसिक वर्कअप होता है. वो बेसिक वर्कअप का प्रोग्राम में जो पहला स्टेप है वो IUI है. किसी भी कपल को, एक सब फर्टाइल मैन और सब फर्टाइल वुमन, किसी को ओवुलेशन में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत उनको ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाता है. फिर किसी हस्बैंड को काउंट पूरी नहीं होती है. हम क्या करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इकट्ठा करते हैं, उस पूरी कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म, प्रिपेयर्ड स्पर्म. तो किसी भी इंसान के लिए वर्कअप, बेसिक वर्कअप पे पहला स्टेज है IUI. और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हम जो कंट्री में है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में रहते हैं, इतना हमारा जो सोशल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहता है और इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहता. शादी होने के बाद बच्चे कहाँ हैं बोल के पूछते हैं इन लॉज, प्रॉब्लम कहाँ है नहीं वो पता नहीं करते, बच्चे कहाँ हैं पूछते हैं. वो समाज का इतना प्रेशर रहता है, माशरे का इतना प्रेशर रहता है, उन बच्चों की जो फिक्र है माशरे के वास्ते पैदा करने की जैसी सिचुएशन पे आ जाता है. और ये कपल्स स्ट्रेस हो जाता है उनको शायद उनको नॉर्मल हो सकते हैं बच्चे, जो ये इन लॉज के दबाव में और मदर्स के, इन लॉज के, पड़ोस और सारी चीजें, सारे लोग यही उम्मीद लगा के बैठते हैं जैसा कि अब उनके घर में बच्चा होने वाला है. सो ये बेसिक वर्कअप करने के लिए IUI बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये फाइनेंशियली ये वायबल है. किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रोग्राम में आ सकते हैं और ये चीज उनको ज्यादा फिजिबल लगती है. अगर IVF और ICSI के लिए जाएंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हमारी जैसी कंट्री में उतनी फाइनेंशियली ये नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना इंश्योरेंस कंपनीज स्पॉन्सर करती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको फंडिंग करती है. ये इस तरह की यहाँ पे इंडिया में नहीं होता. तो बेचारे जो अपने जो कपल्स है उनको अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके उसकी जमा पूंजी को लाके इधर डालना पड़ता है. फिर इसीलिए इतनी हार्ड अर्न मनी को उनका जाया नहीं जाना, तो एक अच्छा फर्टिलिटी सेंटर का चुनाव और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उनको सक्सेसफुल टेक होम बेबी और खुशियां लेके वो अपने घर जाएं. इंश्योरेंस सेक्टर ये फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करता है, तो हम जानना चाहेंगे इसमें आप क्या सुझाव दे सकते हैं, क्यों ये पॉसिबल नहीं है? इंश्योरेंस कंपनीज क्यों फर्टिलिटी के लिए सर्विस देने के लिए या फिर उसको कवर करने के लिए पीछे हट रही हैं? हमारा जो कंट्री है, बिलियन प्लस पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में. हमारे ये जो इनफर्टिलिटी का मामला है, इनफर्टिलिटी ये टेक्निकली हमारी कंट्री में लग्जरी में आता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी को हार्ट सर्जरी की जरूरत है, किसी को फिजिकली उनको इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले डिजीजेस है, उनको उससे जूझना है. तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक इफ यू टेक UK, वहां पे NHS फंडिंग करता है. कुवैत में वहां पे गवर्नमेंट वहां पे 2 से 3 ट्रायल ईच कपल को दो ट्रायल देने के लिए वहां पे स्पॉन्सर करती है. अब अपनी कंट्री में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. इंश्योरेंस कंपनीज में इतनी बड़ी ग्लिच है यहाँ पे. अब मैं अपनी कार इंश्योरेंस के लिए जाऊँ तो 5 साल हो जाते हैं. तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस की कोई प्रॉपर ड्राफ्टेड पॉलिसी नहीं है, जैसे जनरली अगर सारे लोग बोलते हैं. तो ये तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जो ये है मैंडेटरी होनी चाहिए. कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन वो अपने जो वर्कर्स को मैंडेटरी करे, तब जाके हम कुछ इसको सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं. इसका फायदा जनरल पब्लिक इसका फायदा उठा सकती है. पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम उनको
उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, पीपल आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट देयर राइट्स। उनको अपने राइट्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमें खुद भी पता नहीं है कि हम अपनी गवर्नमेंट से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, हमें खुद नहीं मालूम। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। द अल्टीमेट बॉटम लाइन इज वी हैव टू एजुकेट। तो मेरा यही एजेंडा है, टू एजुकेट। मैं हर वक्त यही बोलता हूँ, एक अच्छा सेंटर का चुनाव कीजिए, एक अच्छा डॉक्टर का चुनाव कीजिए, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मैं उस चीज के ऊपर मैं तरजीह देता हूँ एजुकेट करने के लिए। मैं लकी, मैंने जो फादर ऑफ आईवीएफ है, मैं उनसे मुलाकात हुई है ट्वाइस, जो उनको नोबेल ल्यूरेट मिला है 2010 में, रॉबर्ट एडवर्ड। आई एम लकी टू मीट लेजेंडरी डॉक्टर्स एंड इन्वेंटर्स। मैं जेम्स वैटसन को भी मिला हूं, जो वैटसन एंड क्रिक जो डीएनए के जो इन्वेंटर है, उनको नोबेल मिला है। आई वॉज अटेंडिंग वन कॉन्फ्रेंस इन लंदन. It is the 6th International Conference on Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Beside me, James Watson is sitting. I was not aware until he went to his podium and revealed his name, and he started his presentation. In 2006, his age is 92. God bless him. His invention is giving us everything. You take any medicine. It has a DNA for any medicine, any vaccination, any generic medicines, any stem cells है, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पार्किंसंस, क्यूर ऑफ पार्किंसंस डिजीज। बिकॉज ऑफ, अगर ये डीएनए इन्वेंट नहीं होता तो बहुत सारे लोग, कैंसर की बीमारी इन्वेंट नहीं होती। ये क्रिस्पर, C9, ये सारी चीजें, ये कुछ इन्वेंट नहीं होता था। सो आई मेट अ पर्सन हु इज ए रियल लेजेंड ऑफ साइंस, हु इज इन्वेंटर। उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो टाइम पे। दे वर नॉट हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। 1958-60s में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता था? कुछ नहीं। उसकी वजह से हमारा टिश्यू कल्चर मीडिया है, डीएनए बेस्ड है, उसके स्टेम सेल थेरेपी है, पार्किंसंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिस्पर, C9, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल दिस इज कनेक्टेड टू वन बेसिक formula, which is a DNA. DNA is a key entry to the whole lot of genetic world. So I worked with my boss was a legend also. I worked with a doctor who's practicing from 80s infertility. So I learned a lot from him. So we have done some typical cases like retrograde ejaculation. रेट्रोग्रेड एजोकुलेशन क्या होता है? एक डायबिटिक पेशेंट को वो सेमेन यूरेथ्रा से आने की जगह वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ही इज अ वीआईपी। सो ही इज अ डायबिटिक, सो वी हैव डिटेक्टेड वो बाइकार्बोनेट बफर, उसको ये करके यूरिन को स्टेबलाइज किया है, फिर वो यूरिन से स्पर्म निकाल के हमने इक्सी किया है। इस तरह के केसेस हमने सक्सेसफुली अचीव किया है, like retrograde ejaculation, obstructive azoospermia, non-obstructive azoospermia, cryptozoospermia, oligoasthenoteratozoospermia. This is my area of interest.